Welcome back to the channel. I have brought the next part, that is section C, as discussed earlier. दो parts already मैं share कर चुकी हूँ, section A and B. So this is the next section C. Here you will get short answer type questions. Each question will carry 3 marks and there will be total 7 questions. One question has internal choice. So let's start it. Question number 22 of the practice paper. How much water is produced in grams? It is specified when 1 liter of 0.75 molar HCl reacts with 0.5 liters of 2 molar NaOH solution. Reaction तो simple है, हम सबको पता है. Neutralization, it gives H2O and NaCl. Okay, now what is given is that you have 1 liter of 0.75 molar HCl, 1 liter of this and 0.5 liter of 2 molar NaOH. Now the balanced equation is showing 1 mole of this reacts with 1 mole of this. तो हम पहले moles निकाल लेते हैं. In this 0.75 molar means 0.75 moles in 1 liter और हमारे पास है भी 1 ही liter. So I have 0.75 moles of HCl. Here you have 2 molar NaOH, that means 2 moles of NaOH in 1 liter solution. So in 0.5 liters of 2 molar, that is half a liter. 1 liter में 2 moles हैं तो half में क्या होगा? 2 का half, that is 1 mole. So once you have found the number of moles of HCl and NaOH, now you can find out the limiting reagent. 1 मोल HCl 1 मोल NaOH से रिएक्ट करता है तो 0.75 मोल 0.75 से करेगा. You have more than 0.75. So this is excess reagent and this is limiting reagent. So we have figured out that HCl is the limiting reagent here and accordingly we will now do the calculation as required. So here what will we do? 1 mole of HCl produces, हमसे सिर्फ ये पूछा है how much water in grams, तो मैं इसकी calculation नहीं करूँगी. I'll go by the question. So 1 mole of HCl produces 1 mole of water. If I have 0.75 moles of HCl, which is the limiting reagent, simple, I'll get 0.75 moles of water. It's very clearly written in grams. They want the answer. तो आप इसके grams बना लीजिए. You just have to multiply 0.75 moles of water with its molar mass, that is 18 grams per mole होता है. तो मेरा आंसर आ जाएगा 13.5 grams. That's it. 3 marks में आपको इतना ही लिखना है systematically. First of all, find out the number of moles and the statements are also required. So as you write for word problem, ऐसे ही आप उसको simple सा 3 steps में you can show the answer. Question number 23. The question is, a ball is moving with velocity of 72 km per hour and the wavelength associated with this velocity is this much in meters. Calculate the mass of the ball and Planck's constant is also given to you with units. Very important. So what will I do? Lambda, that is wavelength, is equal to h upon momentum. De Broglie relationship. Okay. तो इसको यूज करके हम क्या करेंगे? Lambda is, and the wavelength associated is given. Lambda is given, velocity is given, Planck's constant is given, only the mass of the ball is to be calculated. So I will just rearrange it quickly. Mass is equal to h upon lambda into velocity. अब ये ध्यान रखना है कि velocity होनी चाहिए आपकी मीटर पर सेकेंड में और आपका wavelength is given in meters. तो मैं velocity को भी मीटर पर सेकेंड की टर्म्स में ले आऊँगी. So if you convert 72 km per hour to meter per second, it becomes 20 meter per second.
किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 3600 दैट इज नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 आवर. ठीक है, तो ये हम कर देंगे चेंज एंड देन आई विल पुट द वैल्यूज हियर. हैज गिवन 6.626 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 5 लैम्डा दिया हुआ है क्वेश्चन में -35 इज द पावर राइट मल्टीप्लाइड बाय 20. सिंपल है कैलकुलेशन. सो व्हेन आई सॉल्व इट, अभी 10 की पावर -34 है, 10 की पावर -35 है यहाँ पे, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर +35 होके 10 बचेगा. ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 6.626 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20 कितना होता है 100. तो आपका 10 से 10 कैंसिल. ये कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हैं, मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ करके. कई बार ऐसे लगता है बहुत ही टफ कुछ दे दिया है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. सो यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट द फाइनल आंसर एट लीस्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. यहाँ तो बड़ा इजीली अप टू 4 आ गया है. और डी ब्रॉगली में जो मास होता है वो किलोग्राम्स में होता है. सो माई आंसर इज दिस. फॉर एवरी स्टेप यू हैव मार्क्स, 4 steps, 5, 6 steps, whatever it is, depending upon the calculation. फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं, तो ऐसे हर स्टेप के फॉर्मूला के हाफ ऑफ मार्क लगा के देन यू गेट कंप्लीट 3. एक तो यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना आंसर में, और कैलकुलेशन केयरफुली करनी है अप टू एटलीस्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ द प्रैक्टिस पेपर. प्रेडिक्ट the sign of thermodynamic quantity change, like delta U here, internal energy change, delta H here, enthalpy change, and delta S here, entropy change, randomness. So whether it will be negative, positive or 0, we have to just identify that in each of the following cases. Okay, so here the first one is delta U for an isolated system. तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो हीट मैटर कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ, तो उसका इंटरनल एनर्जी फिक्स्ड रहेगा. फिक्स्ड मतलब चेंज नहीं आएगा. सो हियर माय डेल्टा यू विल बी 0. चेंज 0 है, इंटरनल एनर्जी 0 नहीं है, चेंज नहीं आ रहा. देन द सेकेंड इज एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन ऑफ benzene. Now when combustion is taking place, it is a process where the hydrocarbon is heated with oxygen, in the presence of oxygen I should say, and we get a lot of energy along with carbon dioxide and water as the products. So this is something which is exothermic in nature. So here the delta H is going to be negative because it is exothermic. Last is delta S change for the given reaction is this is a balanced chemical equation. अब इस equation में क्या हो रहा है कि all are gases, reactants as well as product. Here you have 1 mole, here you have 3/2 that is 1.5 mole, and here you have half mole. तो यहाँ आपके पास total 2 moles हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपके पास 1 mole है. तो एंट्रोपी रेंडमनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है. More number of moles of gases are reacting to give rise to lesser number of the moles of the gases as product. तो in this case delta S will also be negative. अब इसको सॉल्व करने में आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा. if the concept is clear, no calculation, nothing, and this question is for 3 marks, 1 mark for each part. So in chemistry paper, even in class 12 CBSE, आपको ऐसे questions बहुत मिलते हैं जो बहुत less time consuming and scoring होते हैं. So that is why chemistry is very easy to do. It is absolutely possible to score full in chemistry. Just do NCERT thoroughly. Okay, question number 25. The question is again a numerical. For this reaction SO3 gas dissociating, decomposing to give you SO2 gas and O2 gas, partial pressures of the 3 gases are given 0.4, 0.8 and 0.6 respectively. The value of R is also given along with units. Then you have to just calculate Kp and Kc. तो अगर मुझे partial pressures दिए हैं तो obviously I'll go for Kp first. Kp is partial pressure of SO2, पहले products लिखते हैं, multiplied by partial pressure of oxygen
divided by partial pressure of sulfur trioxide which is reactant here. और सारी values आपको given है. 1 mole for each, so there is no power, nothing, easy calculation. So I will just put the values. For SO2 it is 0.8 as given in the question. For O2 it is 0.6 and for SO3 it is 0.4. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े इजीली आपका आ जाएगा 1.2 एटमॉस्फेयर. दैट इज द वैल्यू ऑफ Kp. अब Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन. आप प्रॉपर फॉर्मूला लिखते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं. तो मुझे Kp तो पता है, आई हैव टू फाइंड आउट Kc. सो इट बिकम्स Kc इज इक्वल टू Kp divided by RT raised to the power delta Ng. Now what is this delta Ng? It is the number of moles of gaseous products minus gaseous reactants. अब यहाँ तीनों ही gases हैं तो यहाँ आपको 1 mole दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये भी 1 है. So 2 minus 1 will be 1. तो मेरा delta N आ गया 2 minus 1, products के moles minus reactants के equal to 1. So it becomes Kp is already calculated 1.2. आप इसको डिवाइड करेंगे RT से, रेज टू द पावर 1 है तो सिंपल RT आ गया. R इज ऑल्सो गिवन इनटू 298. अब क्वेश्चन में यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है. ओके, सो यू हैव पुट ऑल द वैल्यूज एंड व्हेन यू डू द कैलकुलेशन एज आई टोल्ड यू एटलीस्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे आपका आएगा 0.049 Kc की वैल्यू. तो ये क्या है, बेसिकली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको कहा था. अब ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे तो 0 है, तो कीप इट इन योर माइंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस नॉन जीरो नंबर्स. ओके, नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज और पार्ट. आप स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस में लिखा था 1 क्वेश्चन एज इंटरनल चॉइस. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो न्यूमेरिकल as a choice again here. The question is AgNO3 reacts with NaCl to give AgCl and NaNO3, right? Precipitation of AgCl depends upon the concentration of the solution. आपने solubility product KSP पढ़ा हुआ है, तो KSP को exceed करना चाहिए ionic product. जितनी कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में रिएक्टेंट्स की, जब आप उसकी वैल्यू निकालेंगे आयनिक प्रोडक्ट की तो वो KSP से ज़्यादा होनी चाहिए, देन द प्रेसिपिटेशन इज पॉसिबल. तो आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट द रिएक्टेंट एंड सोडियम क्लोराइड द अदर रिएक्टेंट निकालनी है कि नो प्रेसिपिटेशन अकर्स इफ यू टेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द 2 सॉल्यूशन. क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है पढ़ने में बट इट इज़ वेरी इजी एंड क्लियर. तो इसमें क्या है, KSP इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू कि ये है बेंचमार्क के इससे ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, इसके इक्वल या कम होगा तो प्रेसिपिटेशन आपको नज़र नहीं आएगी. तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपका प्रेसिपिटेट जिसकी बात हो रही है वो है AgCl. सो AgCl इज Ag प्लस एंड Cl माइनस, राइट? यू आर टेकिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द 2 सॉल्यूशन. सो इफ आफ्टर मिक्सिंग देम, सपोज आई टेक each solution with a particular concentration C mole per liter, okay, and after mixing the volume of the concentrations of each solution will be reduced to half. जब आप उसको मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ईच सॉल्यूशन, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ C/2 एंड C/2 कॉन्सेंट्रेशंस इनकी, एंड द KSP बिकम्स C²/4. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यूज को. दिस KSP इज ऑलरेडी गिवन टू यू. इससे आप निकालेंगे C² विच विल बी 4 इंटू 1.8 10 की पावर -10 एंड देन C विल फाइनली बी 2.68 इंटू 10 की पावर -10 मोलर. सो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशंस आर इक्वल टू और लेस देन दिस कॉन्सेंट्रेशन, then there will be no precipitation of AgCl. If the value is equal to or less than this, इससे जैसे ही exceed करेगा precipitation हो जाएगा. So what is important here, you have to understand this and how it has become C/2. Question में दिया हुआ है कि equal volumes of 2 solutions are mixed. Okay, तो हमने assume कर लिया कि volume equal है, कॉन्सेंट्रेशन हमने C ले ली दोनों की,
The reactants, which reactants? AgNO3 and NaCl. They are reacting to give you this product. ठीक है, तो आपने क्या किया, इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस आपने ले लिए इसके, एंड देन यू आर गेटिंग AgCl. अब जब AgCl डिसोसिएट होगा तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों की C/2 हाफ हाफ हो जाएगी. आपने यहाँ तो इक्वल ले लिया था इनको, तो AgCl के तो दो पार्ट्स हो रहे हैं ना, दैट इज वाई C/2 ले लिया टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड. ओके, द नेक्स्ट एंड हियर आई विल जस्ट गो बैक. यहाँ पे ये इसके बाद सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी है, दैट दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन if both the solutions are equal to or less than this concentration, no precipitation will occur. तो ये sentence last का that will complete your answer. Okay, question number 26, that is answer the following questions. Is white precipitate of AgCl obtained on heating chloroform with AgNO3? जैसे कि आपके पास अगर क्लोराइड है Cl माइनस, उसमें आप AgNO3 डालते हैं, आपने सॉल्ट एनालिसिस में भी किया है, यू विल बी गेटिंग AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट. बट यहाँ क्लोरोफॉर्म में भी देर आर 3 क्लोरीन एटम्स आई कैन सी. तो क्या इसमें आपको रिएक्शन मिलेगा? विल यू गेट द वाइट प्रेसिपिटेट? नो, यू विल नॉट गेट. Why? Because the bond between carbon and Cl and CH-Cl3 chloroform is a covalent bond. Covalent bond will not give you Cl minus easily. तो इसके लिए अगर आपको याद हो, ऑर्गेनिक के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है. उसका पर्पस ये होता है कि आप इसको कोवलेंट से आयनिक में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल गेट दिस. तो यहाँ पे आपको वो सब नहीं लिखना. You will just write white precipitate of AgCl is not obtained because the bond between carbon and chloride is a covalent. Okay. The next is second part. Arrange the following acids in the increasing order of acidic strength, specifying the electron displacement effect. अब ये चीज़ important है, आपको नाम लिखना है electron displacement effect का. So that is what making it a longer one as far as answering is concerned, because I have to think about the effect which is inductive effect here, कि वो कैसे decide करेगा. So here you can see that carboxylic acids हैं सारे, और सब में ब्रोमीन है कहीं ना कहीं. यहाँ पे ब्रोमीन 1 2 3 थर्ड कार्बन पे अटैच्ड है ब्रोमीन. इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, इसका एक कम है तो Br इधर ही होगा. यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल पे है 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 पे ही है, बट देर आर 2 ब्रोमीन्स. तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स होंगे ब्रोमीन हेयर, उतना ज़्यादा आपका कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज हो जाएगा, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स इट विल बी लूजिंग H प्लस आयन. सो व्हेन यू हैव CH3 CH Br CH2 CO माइनस, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये स्टेबलाइज हो जाता है इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. बट वो जितना डिस्टेंस पे होगा उतना उसका इफेक्ट कम होता जाएगा. अब यहाँ पे इफ़ यू सी केयरफुली, तो on the third carbon you have 1 Br, on the third carbon you have 2 Br atoms. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स या ग्रुप्स होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा उसको. सो दैट इज़ वाई दिस हैज़ मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हैज़ एन एसिड. एंड हियर इट इज़ एट फोर्थ कार्बन. जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना इंडक्टिव इफेक्ट का कम होता जाएगा. सो दैट इज़ वाई द ऑर्डर शुड बी maximum, this should be minimum, this will come in the middle. तो आप accordingly लिख देंगे. सबसे पहले आप ये वाला एसिड लिखेंगे, उसके बाद ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये साइन लगाना है. सो इफ इट इज मैक्सिमम, सो दिस शुड बी थर्ड, दिस शुड बी फर्स्ट, दिस शुड बी सेकेंड इन द ऑर्डर. तो आप यहाँ पे फर्स्ट सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, फिर सेकेंड वाला, और फिर आप लिखेंगे ऐसे लगा के साइन थर्ड वाला मैक्सिमम स्ट्रेंथ. और फिर यहाँ नीचे आपको सिर्फ स्पेसिफाइंग द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोला है, तो आप नाम लिख दीजिए. इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27.
At 27 degree Celsius, the value of internal energy change for the reaction, which is given here, ethanol reacting with oxygen, giving you CO2 and H2O balanced equation. First of all, check is the equation correctly balanced. Sometimes there are printing mistakes. So it's always better to be sure कि हमारा सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो आप ज़रूर चेक करें कि बैलेंस्ड है इक्वेशन. 2 carbons, 5 plus 1 6 hydrogen, 3 into 2 6 hydrogen, 1 oxygen, 3 into 2 6 oxygen, 7 हो गए टोटल. और यहाँ पे 2 into 2 4 plus 3 7. सो इट इज़ परफेक्ट, सही है बैलेंसिंग. अब आप क्या करेंगे, यू विल सी दैट आपको इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज गिवन नेगेटिव वैल्यू के साथ. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, दैट इज डेल्टा एच. मुझे डेल्टा एच निकालना है. सो फॉर दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला? आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, उसमें होता है इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी, और डेल्टा एन जी आर टी. तो जब आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये इसमें प्लस हो जाएगा. दैट इज़ हाउ वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला, राइट. तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा एच माइनस 1360, साइन का बहुत ध्यान रखना है, प्लस नाउ व्हाट इज डेल्टा एन. डेल्टा एन के एन जी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स. गैशियस प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं आपके पास. गैशियस रिएक्टेंट के आपके पास 3 मोल्स हैं. ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसको हम नहीं करेंगे कंसीडर फॉर डेल्टा एन, सिर्फ गैसेस को करते हैं. तो 2 - 3 विल बी -1. तो यहाँ मेरा डेल्टा एन आ गया -1 इंटू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है आर की वैल्यू. एंड देन -3, वाई -3 किलो जूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या कि मैं क्यों करूं किलो जूल्स में? क्योंकि ये किलो जूल्स में. तो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल होता है. किलो जूल्स के लिए मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना था, तो मैंने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट दिस. अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ भी माइनस आएगा. 2.4942 इक्वल टू -1366.49. बी केयरफुल, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होंगे और साइन नेगेटिव आएगा. तो इसमें से इधर 2.49 को माइनस नहीं करना है, ऐड करना है. एंड देन किलो जूल्स पर मोल. दिस इज माई आंसर. इतना सा मैंने सॉल्व किया, आई विल गेट फुल 3 मार्क्स. नाउ I think, yes, we have come to the last question of this particular section. Write the reactions for the given particular step involved in the specified mechanism. Generation of electrophile specifically for nitration of benzene. तो मुझे सिर्फ इतना सा लिखना है. कई बार पूरा मैकेनिज्म भी आ जाता है, 3 स्टेप मैकेनिज्म. तो यहाँ पे नाइट्रेशन में भी यूज नाइट्रेटिंग मिक्सचर विच इज सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड. तो हमने एज पर NCERT ऐसे करके बना लिए इनके स्ट्रक्चर्स. मैकेनिज्म में तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के स्टेप्स देने पड़ेंगे. एंड देन दिस डिसोसिएट्स टू anion and H plus, and then here you have lone pairs. So what is happening, ये यहाँ से H plus को ले जाएगा and you will be getting HO, one more H. इसकी बात हो रही है. इस पे आ गया पॉजिटिव क्योंकि इसका लोन पेयर यूज हो गया टू मेक बॉन्ड, और ये आ गया O, राइट. आफ्टर दैट इफ यू सी दिस then this cannot be a stable bond क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर उस पर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा ऐसे, एंड यू विल गेट वाटर प्लस NO2 विद अ पॉजिटिव चार्ज. तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जिसका जनरेशन यहाँ पूछा हुआ है. सो वी हैव डन दिस पार्ट. सेकेंड इज होमोलिसिस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड. अब इसके लिए मुझे बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O
O, C double bond O, C6H5. ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड. When it undergoes homolysis, तो यहाँ से पेरोक्साइड लिंकेज ब्रेक्स, हाफ एरो हाफ एरो. तो मैं शो करूँगी कि मेरे पास 2C6H5 C डबल बॉन्ड O विद अ डॉट, मतलब फ्री रेडिकल आ गए 2. अब ये फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं है. क्यों स्टेबल नहीं है? हियर यू हैव ऑक्सीजन विद अ डॉट. डॉट मतलब इट डज नॉट मीन कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना ही इलेक्ट्रॉन है, बट इसका अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा. सो व्हाट विल हैपन, बेंजीन और ये कार्बन, इसके बीच में भी ये बॉन्ड ब्रेक होने की कोशिश करेगा. हाफ एरो और एक किसी जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पर हाफ एरो, एंड इट विल ब्रेक लाइक दिस टू गिव यू. अब इस पर भी एक डॉट आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O विद अ फ्री रेडिकल. यहाँ भी फ्री रेडिकल बन गया. अलॉन्ग विद दैट C6H5 फिनाइल फ्री रेडिकल. सो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है, तो क्या होगा, ये आपस में दे विल मेक अ डबल बॉन्ड. देन यू कैन रिमूव दीज. तो आप क्या करेंगे, यू विल शो दिस CO2 बन गई, फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया. दिस कंप्लीट्स द स्टेप. Benzoyl peroxide undergoing homolysis, we have completed. Okay. Third part, reaction taking place at cathode in Kolb's electrolytic method. Kolb's electrolytic method में क्या होता है, decarboxylation basically, and cathode पे reduction takes place. So if I remember this much, तो मुझे पता होगा कि वहाँ पे water molecules they take electrons which are coming by oxidation reaction, loss of electron, and they will convert to 2OH minus along with 2H. अब ये फ्री रेडिकल बनेगा या नेगेटिव चार्ज बनेगा? फ्री रेडिकल. हाउ इज इट हैपनिंग? HOH. इफ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया, तो मुझे मिला, ये 2 थे, तो आई एम गेटिंग 2 plus 2H. Now 2 electrons are coming. Oxygen is more electronegative, तो दोनों ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके 2OH माइनस बनाएंगे. दिस इज हाउ आई गॉट दिस 2OH माइनस. अब जब 2 H एक साथ हैं तो दे विल गिव यू H2, हाइड्रोजन गैस. तो ये क्या है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एंड आई एम गेटिंग द प्रोडक्ट्स लाइक OH माइनस एंड H2. So one step from different mechanisms and 1 mark for each step. So this completes section C. अब आपको next section जल्दी ही मिल जाएगा, section D, और फिर last section E as soon as possible. All the best. Prepare well.